morning, student. How are you? I think all are fine. My best wishes for everyone, for my lovely children, those who are at their homes. Yes, and best wishes for to complete your work, doing your other extra work. My best wishes for everyone. Today we will talk also about the last topic, tournament committees. Yes, and before this video I talked about our first committee, which name was which name was organizer committee. Yes, it is our first committee, and it is divided into three parts: chairperson, chief technical, or third was organized secretary. After that, we will talk our second committee, which name is finance committee. To conduct any sports meet, any event or tournament, we have to frame many different types of committees which have very valuable response duties to make successful any event or tournament. Second is finance committee. Now we will talk about it. So listen to me. It is responsible for all financial reserve and expenditure, etc. They should work as per budget plan. This committee makes all the payments. What? Total financial problem. Yes, the whole tournament runs under the guidance of finance committee also. The duty of finance committee is to give the money, take the list or slips, to provide the valuable goods related to the meet or events or tournament. Yes, to conduct the whole program under the budget or pre-planned budget. It is main responsibility of this committee, which name is finance committee. Yes, all payments was done by this committee. Okay, I think it is clear. Which name is number second, finance committee. Number 3 is publicity committee. It is our third committee, in which there are many important jobs or work during the tournament or any sports meet. What are? Listen to me. The role of publicity committee is to give the sports events a wide publicity. Yes, अब क्या है इसका मतलब कि जो पब्लिसिटी कमेटी होती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका मुख्य रोल क्या होता है कि जो अपनी लोकेलिटी है, लोकेलिटी में नहीं अभी तो दूर दूर तक जहां तक संभव हो सकता है, उस स्पोर्ट्स इवेंट का, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का क्या करना है, उसकी पब्लिसिटी करनी होती है कि हमारे यहाँ पर ये स्पोर्ट्स इवेंट होने जा रही है, इस डेट को होने जा रही है,
इसके मुख्य अतिथि ये हैं, इसके प्राइज़ ये हैं, फर्स्ट प्राइज़ वाले को ये प्राइज़ मिलेगा, सेकंड वाले को ये स्थान मिलेगा, ये प्राइज़ मिलेगा, इतना कैश मिलेगा। तो ये सब पब्लिसिटी कमेटी का पार्ट होता है और ये सब इसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों तक, जन जन तक पहुंचाना। एंड ऑल द प्रेस रिलीजेस press conference result during the meet as well as publicity regarding dates, venue through media and posters etc. अब ये जो पब्लिसिटी कमेटी होती है इसका मुख्य उद्देश्य होता है प्रत्येक व्यक्ति तक जहाँ तक संभव हो सकता है सभी लोगों को जानकारी देना, उसकी पब्लिसिटी करना। तो कैसे कर सकते हैं? प्रेस के माध्यम से, अखबारों में, न्यूज़पेपर में अपनी ये न्यूज़ दे करके कि हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स इवेंट हो रही है, इस प्रकार का टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है, आप सब आमंत्रित हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो आपके लोकल मीडिया है और दूसरे मीडिया, उन सबको बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप पब्लिसिटी कर सकते हैं। साथ साथ आप जगह जगह पोस्टर लगा करके पब्लिसिटी कर सकते हैं। आपको बताना पड़ता है कि कौन सा इवेंट, कौन सा टूर्नामेंट आप कराने जा रहे हैं, वो कौन सा स्थान होगा, कौन सा वेन्यू होगा, कौन सी डेट को होगा, उसके मुख्य अतिथि कौन होंगे, उसके रेफरीज कौन होंगे, क्या क्या प्राइज़ हैं, यस, क्या कैश प्राइज़ हैं, या कैश प्राइज़ नहीं भी है तो और क्या क्या लाभ उसके मिल सकते हैं। ये सभी चीज़ें, इन सभी को करने का जो कार्य होता है वो होता है पब्लिसिटी कमेटी का, जिसके माध्यम से आपकी जो इवेंट होती है वो सक्सेसफुल बनती है। दूर दूर तक लोगों को पता होता है कि ये स्पोर्ट्स इवेंट इस संस्था के माध्यम से कराया जा रहा है या इन व्यक्तियों के माध्यम से कराया जा रहा है। आई थिंक इट इज क्लियर। नंबर 3 इज पब्लिसिटी कमेटी। नंबर 4 इज रिसेप्शन कमेटी। यस, नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिसेप्शन कमेटी. What is the role of reception committee? The first interaction of the team is done by the reception committee, where they are informed about the tournament schedule, their stay arrangements and other important information. Okay, and is also provided to the team's eligibility form, and the teams are collected and checked. It is the main work of reception committee. Giving any information, talking, any introduction, query regarding any information, any event. Yes, collect the eligibility forms. Any information, important information is given by the reception committee. हम जानते हैं कि सबसे पहले जब कोई टूर्नामेंट होता है तो कोई भी टीम जब बाहर से आती है उस स्थान पर जहाँ पर टूर्नामेंट हो रहा है तो सबसे पहले जो उनकी मुलाकात होती है वो रिसेप्शन कमेटी से होती है। रिसेप्शन कमेटी अपने पूरे शेड्यूल को बताते हैं उनको, पूरा शेड्यूल उनको प्रोवाइड भी कराते हैं। उस पूरी टीम का रुकने का इंतजाम, उसके खाने पीने से लेकर के अन्य इन्फॉर्मेशन, जानकारी देना, सारा शेड्यूल उनको प्रोवाइड कराते हैं। साथ साथ उन पूरी टीम जो आई है उनके एलिजिबिलिटी फॉर्मों को चेक करना कि सभी प्लेयर जो एक एज लिमिट है, जो रूल्स रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। यस, उनको स्थान देना और उनको चेक करना, ये आपका रिसेप्शन कमेटी का वर्क होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि ड्यूरिंग द मैच, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, ओवर द टूर्नामेंट, बिफोर द टूर्नामेंट, सारी जो क्यूरीज करती हैं वो सब रिसेप्शन कमेटी पर आकर ही करते हैं, रिसेप्शन पर करते हैं।
It is also very important committee, which name is reception committee. Number 5 is technical committee. Yes, does all the arrangements over the play field as technical requirement of the game. Manage game, referee during game, handles table official duty, manage the timekeeper duty, score sheets, scoreboard, etc. It is the main work, main role of technical committee. Means arrange all equipments, all sheets, scoreboard, chalk, pen, stopwatch, everything. It is main part, main role of technical committee. All arrangements are conducted with the help of technical committee. यानी कि जब टूर्नामेंट होता है, कोई भी स्पोर्ट्स मीट होती है, इवेंट होती है, तो प्ले फील्ड में जहाँ पर गेम शुरू होने वाला था, कोई मैच होने वाला होता है, तो टेक्निकल रूप से वहाँ पर जो जो आवश्यकताएं होती हैं उस गेम से रिलेटेड, उस मैच से रिलेटेड, यस, चाहे वो हैंड टेबल हो, ऑफिशियल ड्यूटी, कोई चार्ट हो, टाइम कीपर की ड्यूटी हो, स्कोर शीट हो, स्कोर बोर्ड हो, चौक हो, पेन हो, स्टॉप वॉच हो, सब चीज़ों का अरेंजमेंट करना किसका काम होता है? टेक्निकल कमेटी का काम होता है। ये उस वैल्यूबल स्थान पर जहाँ पर मैच हो रहा है, चल रहा है, वहाँ के रिक्वायरमेंट के अनुसार सारी चीज़ें उपलब्ध कराना होता है उनका। नंबर 6 इज बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी. This committee manages the comfortable study of astonished terms. It also manages good meals for the teams without disturbing their match schedule. It is the main work of boarding and lodging committee. सभी टीमों का रहने का बंदोबस्त करने के साथ साथ कि सभी टीमों को अच्छे प्रकार से भोजन मिल सके, सभी टीमें एक साथ ना आ जाएं, अगर आ भी जाएं तो किस प्रकार से उनको मैनेज करना है। बॉयज़ गर्ल्स दोनों मिक्स एक जगह खाना खाएंगे, या ब्रेकफास्ट करेंगे, या डिनर करेंगे, या अपने स्नैक्स करेंगे, या कंटिन्यू जो प्रोग्राम शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग मैचेस भी चलते रहेंगे, और सभी लोग, सभी टीम्स के खिलाड़ी भैया, कोचेस और जो अन्य मेंबर्स हैं वो ठीक प्रकार से शेड्यूल के अकॉर्डिंग भोजन भी करते रहे, ब्रेकफास्ट करते रहें, अपना डिनर भी करते रहे और स्नैक्स भी करते रहें। ये मेन वर्क होता है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी का। यस, सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब खिलाड़ी ठीक से खा नहीं पाएंगे तो उनका स्ट्रेस दूर नहीं होगा, नींद दूर नहीं होगी, नींद नहीं आएगी, और जब नींद आएगी तभी उनका स्ट्रेस दूर हो पाएगा, तभी वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो ये भी अपनी जो कमेटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इज नंबर 7, सेरेमोनियल कमेटी. दिस कमेटी हैंडल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी, मैनेज द गेस्ट, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, pandal arrangements, yes, decoration of the pandal, etc., and different kinds of the decoration related the tournament, related the ceremony, maybe closing ceremony or maybe opening ceremony. It is the main work of this ceremonial committee. क्या आप जानते हैं कोई टूर्नामेंट होता है, कोई स्पोर्ट्स इवेंट होती है, अन्य कोई वर्क होता है, तो क्या होता है, एक ओपनिंग सेरेमनी बोलते हैं जिसको हम, अर्थात किसी भी चीज़ की शुरुआत करना। तो उसमें क्या होता है, जितने भी चीफ गेस्ट आते हैं, अन्य वैल्यूबल पर्सन आते हैं, उनके स्वागत के लिए या अपने गेम को शुरुआत करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई कल्चरल प्रोग्राम या अन्य कोई प्रोग्राम करते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड या अन्य कोई भी प्रोग्राम करते हैं, उसको बोलते हैं क्लोजिंग सेरेमनी।
और जब पूरा टूर्नामेंट, स्पोर्ट्स मीट या इवेंट कंप्लीट हो जाती है तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कराना, वो सब कार्य किसका होता है? वो क्लोजिंग सेरेमनी उसको बोलते हैं। उसमें मुख्य अतिथि होते हैं, सभी लोग होते हैं। तो इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्लोजिंग सेरेमनी को कराना है, खेलों की शुरुआत कराना। जितने भी गेस्ट आए हैं उनको पट्टा पहना करके, बैज लगा करके उनका सम्मान करना, या अन्य को जैसे तलवार भेंट करना, अन्य प्रकार के गुलदस्ते, फूल वगैरह भेंट करना, उनका सम्मान करना। साथ साथ पंडाल का लगाना, डेकोरेशन जहाँ तक संभव हो सकता है, जहाँ तक आवश्यकता रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर साज सजावट की जो व्यवस्था होती है वो सेरेमोनियल कमेटी की व्यवस्था होती है। और जब गेम्स ओवर हो जाते हैं, टूर्नामेंट ओवर हो जाता है, स्पोर्ट्स मीट ओवर हो जाती है, तो क्या होता है? उसको हम क्लोजिंग सेरेमनी बोलते हैं। उसमें भी साज सज्जा पूरी होती है, चीफ गेस्ट होते हैं, वीआईपी वीवीआईपी पर्सन्स होते हैं, उसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और सभी को सम्मानित किया जाता है। ये सभी कार्य किसका है? सेरेमोनियल कमेटी का है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, आई थिंक इट इज क्लियर। अवर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कमेटी इज सर्टिफिकेट राइटिंग कमेटी. It is very different and challenge work. Yes, writes and gives the participation certificates to non position teams and merit certificate to position teams. What? When you are going to conduct any sports event, in that condition you have to give a certificate for all players, to all players, which name is participation certificate. It is given to all players, those who are participating in that event, meet or tournament. Non position holder. And second is merit certificates is also right, is also, yes, and these certificates are related with position holders, teams or players. It is main work of certificate committee. जो सर्टिफिकेट कमेटी का कार्य क्या है? जितने भी उस प्रतियोगिता में, खेल में जितने भी लोग, जितने भी प्लेयर्स, खिलाड़ी, भैया हो बहन हो, प्रतिभाग कर रहे हैं, उन सभी को एक सहभागिता प्रमाण पत्र दिया जाता है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। दूसरा, इसी के साथ साथ जब वे सारे खिलाड़ी भैया बहन जो अपना स्थान बनाते हैं इस टूर्नामेंट में, इस स्पोर्ट्स इवेंट में और मीट में, तो क्या होता है? उनको उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट भी लिखने का काम जो होता है वो इसी कमेटी का नाम, इसी कमेटी का वर्क होता है, जिसको हम सर्टिफिकेट कमेटी बोलते हैं, कहते हैं। इसके लिए नंबर 9, मेडिकल कमेटी. ओके, टू प्रोवाइड मेडिकल एड टू इंजर्ड और रिस्क प्लेयर्स ड्यूरिंग द मैच, आफ्टर ओवर एनी मैच. Yes, if there is any need related the medical, तो it is given by the medical committee. खेल से पहले, खेल के दौरान या खेल के बाद यदि किसी भैया बहन को, खिलाड़ी भैया बहन को कोई चोट लग जाती है, इंजर्ड हो जाते हैं, तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देना इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य होता है। और जहाँ पर भी ये गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते हैं, हर मैच के दौरान ये कमेटी वहीं पर उपलब्ध रहती है, इनका मुख्य उद्देश्य है। नंबर 10, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी. इट इज ऑल्सो वैल्यूएबल कमेटी टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन फॉर द आउट स्टोनियंस teams. Yeah, those teams which are coming from the by the train or by bus. Yes, adopt and
leave the station, it is the main duty of this transportation committee. कोई टीम बाहर से आ रही है, उनको रिसीव करना, फिर बाद में उनको छोड़ना, ये ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का वर्क होता है। अर्थात सभी टीमों को ले जाने और लाने का कार्य जो होता है वो इसी कमेटी के माध्यम से होता है। नंबर 11 इज announcement committee, makes important announcement and does commentary of matches, any information related to the games and sports before match, during the match and after over the match may be given by this committee। यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट होते हैं, यस, चाहे वो गेम से पहले हो, गेम के बीच में हो, गेम पूरा होने के बाद हो, सारी इम्पोर्टेंस अनाउंसमेंट जो होते हैं, इंफॉर्मेशन जो दी जाती है, वो इसी अनाउंसमेंट कमेटी के माइक के माध्यम से दी जाती है। नंबर 12 रिकॉर्डर्स एंड बुलेटिन बोर्ड कमेटी, ये भी बहुत वैल्यूबल कमेटी है। कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल मैचेस, मैनेज द रिजल्ट ओवर बुलेटिन बोर्ड, यानी कि मैच के बाद जितने भी को या इस टूर्नामेंट में कितने मैच हुए, किस टीम ने किसको हराया, किसको कितने पॉइंट्स मिले, कौन सी टीमें फाइनल में गई, कौन सी सेमीफाइनल में खेली, कौन सी टीम फर्स्ट आई, कौन सी सेकंड आई, कौन सी थर्ड आई, कितने बच्चों ने प्रतिभाग किया, सारा जो रिकॉर्ड मेंटेन करने का वर्क होता है इस रिकॉर्डर एंड बुलेटिन कमेटी का, बोर्ड का हिस्सा होता है। यस, ये भी बहुत वैल्यूबल कमेटी है। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। इन द एंड ऑफ दिस video I am going to summarize all tournament committees and their duties. First is organizer committee, are divided into three parts: chairperson, chief technical advisor or organizer secretary. Finance committee, main work is provide money. Publicity committee, main work to maintain the publicity related to the games and sports news. Reception committee to give the information and schedule. Technical committee provide all things, equipments and goods related to the games and sports on that field and or play field or court. Boarding and lodging committee, arrangement to provide good food and management related to the food. 7 ceremonial committee, closing ceremony, opening ceremony and decoration is a part of this committee. Certificate writing, participation certificate or position holder certificate is published with the help of this committee. Medical committee to provide the medical treatment first aid during, before and after over the match or tournament. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। यस, सभी को छोड़ना, रिसीव करना, ले जाना, लाने का कार्य इस ट्रांसपोर्ट कमेटी का वर्क होता है। अनाउंसमेंट कमेटी, मेकिंग इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज मेन वर्क ऑफ दिस कमेटी। मेंटेन द रिकॉर्ड्स बुलेटिन बोर्ड is the main work of this 12 number committee, which name is Recorders and Bulletin Board Committee. These are the main pillars of committee of planning. With the help of this committee, we can make successful any sports meet, any sports event or any tournament. Okay, my dear student, I think it is clear. If you have any question in your mind, you can ask me. You can leave a message on your class WhatsApp group. Contact to class teacher. Thank you. Have a nice day.